A warm welcome to the NAC News Channel, your own official news channel of NAC, working under the guidance of Commander Ashok Rautji for the bright future of EPS 95 pension holders across the country. Please subscribe to the channel by the pressing subscribe button, like video and also share. Thank you. NAC के ऑफिशियल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। देश भर के EPS 95 पेंशन धारकों के उज्जवल भविष्य के लिए कमांडर अशोक राउत जी के मार्गदर्शन में कार्यरत आपका अपना NAC का ऑफिशियल न्यूज चैनल। निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। Good morning, Namaskar. I am Commander Ashok Raut, National President for National Agitation Committee, EPS 95. Friends, I would like to share a few things with you. First of all, I welcome the Gujarat team, our NAC's National Secretary, Kirit Gohil ji. He and his 12 friends who came from Gujarat all the way to Buldhana to congratulate and encourage our agitators, our people, those who are doing fast hunger strike. I am really grateful to them for the gesture. Second thing, a lot of phone calls are coming and people are asking why there is no mention of EPS 95 in the budget or why there is no allocation or even indication. Let me tell you, and I can understand your anger, I can definitely understand your feelings, but let me tell you, our problem is heard by the highest authority, that is the Prime Minister. On 4th March 2020, by the initiative of Honorable Hema Malini ji, Honorable Prime Minister had given us patient hearing and he promised us that all 4 demands of ours will be fulfilled. Whether it is 7,500 plus DA as a minimum pension, medical facilities, then those who are not in the gambit of EPS 95, they should be taken or they should be rewarded accordingly, and also the higher pension issue. So friends, when it comes from that level, there is no iota of doubt that it will be done. To support this, we have started nationwide campaign of contacting the who's who of India, including all MPs, all respectable MPs, all respectable CWT members, CBT members, and also the trade union leaders. Everybody we are contacting. We are contacting even, other leaders who are, and everybody is with us. Be it a political leadership, be it a spiritual leadership of the country, be it is the social leadership of the country. Everybody is with us, everybody's blessings are with us because our problem is genuine and it will be solved within this budget session. So please don't worry. You don't have reason to, get confused. In the same way, we had met Honorable Bhartrihari Mahatab Sahab, MP Cuttack, who is the leader of Parliamentary Committee on Labour. There is 31 MPs committee is being set up for all the issues of concerning labour and EPFO. We met him, we presented him our report, our committee's report of NAC's report, and which he accepted. The report is very good report and it shows how our demands can be fulfilled within our money. You also know that on 26th January 2020, that is last year, we have withdrawn all our agitations on request of Honorable Labour Minister.
only Buldhana agitation, which is chain hunger strike, is going on symbolically, and all other agitations are withdrawn. So therefore there is no support to any agitation presently going on in the country. There are people who are confused between different agitations. Let me make it very clear, we are not supporting any agitation in the country which is going on presently. We are not politically motivated people, we are social people. At the last, I would say we are conducting Central Working Committee's meeting on 30th April, and the General Convention, National Convention on 1st May, that is Kamgar Din, Labour's Day. The place and other things will be told to you later on, but this is what we are planning. And at last, I would like to reassure you that 7,500 pension and medical facilities and other demands will be fulfilled within this parliamentary session. Thank you. सर्वेशां मंगलम भवतु. ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत. धन्यवाद. नमस्कार, मैं कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95. मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ. 2-4 पॉइंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे गुजरात के साथी 12 लोग आदरणीय किरीट गोयल जी के नेतृत्व में, जो हमारे NSA की सेक्रेटरी है, यहाँ आकर जो उन्होंने हमारे आंदोलनकर्ताओं की हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ. अभी हाल ही में EPS 95 के बारे में कई फ़ोन आ रहे हैं, हमारी पेंशन के बारे में. लोगों का कहना है कि बजट सेशन हुआ और बजट में हमारे EPS 95 के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, कुछ अलोकेशन की बात नहीं है. तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ आप में गुस्सा है, रोष है, आपकी भावना मतलब प्रखर है, लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम 4 मार्च 2020 को आदरणीय हेमा मालिनी जी की अगुवाई में मिले थे, और उनसे जब मिले तो उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया है, और हमारा ये चारों मांगे उन्होंने तत्वतः मान्य की हुई है. 7,500 महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटीज़, हायर पेंशन का मामला, या जो बचे लोग हैं उनको इस दायरे में लाने का मामला, ये सारे पे हमें आश्वासन मिल चुका है. और इसी के तहत इसको आगे बढ़ाते हुए हमने महासंपर्क अभियान शुरू किया है, जो कि हमारे सारे देश के जो आदरणीय MPs हैं, आदरणीय CBT मेंबर्स हैं, हमारे आदरणीय ट्रेड यूनियंस के लीडर्स हैं, इन सभी को हम अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच किया है, और उन सबके हमें आशीर्वाद प्राप्त है. बड़ी तादाद में देश की लीडरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल हो, स्पिरिचुअल हो या सामाजिक हो, हमारे साथ है. हमें सबका आशीर्वाद प्राप्त है. हमारा काम होगा, ज़रूर होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा. इसी दौरान, इसी आंदोलन का एक हिस्सा, हम पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर जो बनी हुई है 31 सांसदों की, उसके जो लीडर है भर्तृहरि महताब साहब, उनसे हम जाके कटक में मिले, हमने मीटिंग की. हमने अपनी तरफ से, अपनी संगठन की तरफ से जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जो अहवाल है, हमने उनको सादर किया और उनसे कहा कि ये देखिए, इसमें पूरा मतलब हिसाब किताब है, और हम ये मानते हैं कि हमारे पैसों में ही हमारी मांगे पूरी हो सकती है. ये उनको हमने दिया है, उन्होंने वो स्वीकार भी किया है. आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 2020 के बाद आदरणीय लेबर मिनिस्टर, कामगार मंत्री जी के रिक्वेस्ट पे हमने पूरे देश के सारे आंदोलन वापस लिए हुए हैं.
हम सिवाय बुल्ढाना के आंदोलन, जो कि एक सांकेतिक हमारा आंदोलन है जिसका 774वां दिन है, ये आंदोलन चल रहा है। बाकी सारे आंदोलन हमने बंद कर दिए हैं। हाँ, इस समय का हमने उपयोग भरपूर किया है संगठन बढ़ाने के लिए, संगठनों को और स्ट्रांग करने के लिए और हमारी ताकत बढ़ाने के लिए हमने इसका उपयोग किया हुआ है और करना भी चाहिए। ये हमारा संपर्क अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट का सेशन खत्म नहीं होता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभियान को और जोर से तेज चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क कीजिए। महत्वपूर्ण लोग जो देश के निर्णायक लोग हैं उनसे संपर्क कीजिए, हमारी समस्या उनको बताइए। तो हमने सारे आंदोलन वापस लिए हैं, इसलिए हम किसी भी आंदोलन का, किसी भी पॉलिटिकल आंदोलन का या अदरवाइज आल्सो हम देश में समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये मैं बड़ा स्पष्टतया कहना चाहता हूं कि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम किसी भी आंदोलन का देश में जो प्रेजेंटली चल रहे हैं, हम किसी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक विचार है कि 1 मई को, कामगार दिन को, हम राष्ट्रीय अधिवेशन रखेंगे। उसके पहले एक दिन 30 अप्रैल को हम एक CWC की, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखेंगे और एक तारीख को, कामगार दिन में, हमारा बहुत बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। आगे की रणनीति तब तय होगी। और इसी के साथ मैं आपको एक बार अंत में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा काम 31 मार्च तक या इस बजट सेशन में होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। हमारी जो भी मांगे हैं इस बजट सेशन में पूरी होगी, ये मैं आपको एक बार यकीन दिलाना चाहता हूं। इसी के साथ धन्यवाद। सर्वेषां मंगलम भवतु। श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत। जय हिंद।